Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we are continuing with the geography series and we will be covering the topics of galaxies, regarding stars and also regarding black holes. To get a detailed overview of the above stated topics, do visit our GS1 geography playlist. Now regarding galaxy, what is a galaxy? Galaxy is a collection of gas, dust, stars and also their solar systems. All of these are held together by the gravitational forces. Different टाइप की galaxies होती हैं. For example, spiral galaxy, elliptical galaxies and also irregular galaxies that are formed by the collisions between different structures. एंड इरेगुलर है तो इतना लुमिनोसिटी इनमें हाई नहीं देखने को मिलता है हमें, बट स्पाइरल एंड इलिप्टिकल गैलेक्सी जो होती हैं उनकी लुमिनोसिटी हाई होती है क्योंकि हॉट एंड यंग स्टार्स आर लोकेटेड इन दीज गैलेक्सीज. नाउ रिगार्डिंग the stars which are present in these galaxies, we will be studying about the life cycle, a quick overview about the life cycle of the stars, regarding the luminosity of stars at different ages, and then what is active galactic nucleus. So first of all, life cycle of a star, it starts from nebula. Nebula, that is a cloud of gas and dust particles. It is being held together by the gravitational forces. It is coming together and a dense core is being formed. Now at this very early stage, at the baby stage, a dense core is formed. The temperature is rising because the compaction forces are also rising in the core. That is why this structure is formed, which is called protostar. But at this stage, the nuclear fusion is just beginning because because the temperature is not high enough to support the nuclear fusion process, the process where the hydrogen is turning into helium. Now, after this stage, when the temperature is also increasing and the core is also getting denser, there comes a stage of main sequence star. इस स्टेज को हम सबसे ज्यादा स्टेबल फेज बोलते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमारा सन भी है एंड जो ल्यूमिनोसिटी है वो भी ज्यादा होती है एट दिस स्टेज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टार है इट इज एट अ स्टेबल पोजिशन, द टेम्परेचर इज ऑल्सो हॉट इनफ, द core is also denser and the process of fusion is also going on. That is why it is shining brightly like our sun. Then comes the red giant or supergiant phase, where the amount of hydrogen that is converting into the helium is slowly decreasing with time. That is why the core also starts contracting inwards and the outer layer is starting to expand outwards. जिसकी वजह से a red giant or a supergiant or a massive star is formed. From this phase onwards, क्योंकि the hydrogen is running out, the core is contracting and the outer layer is expanding, we are going towards the stages of death. We are going towards the stage of aging of a star. Now at this stage, it depends on the size of the star that what it will convert into. If the star is smaller like our sun, then it will convert into a white dwarf जिसकी luminosity इतनी ज्यादा नहीं होती है. But if it is a massive star, then it will convert into a न्यूट्रॉन स्टार और इन अ ब्लैक होल. बट यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन होता है इन बिटवीन द न्यूट्रॉन स्टार एंड बिटवीन अ ब्लैक होल. दैट इज, इफ द मास ऑफ द स्टार is 8 to 20 times bigger than the mass of the sun, then it will be converting into a neutron star after a supernova explosion. But if the star is more than 25 times bigger than the mass of the sun, then it will be converting into a black hole after the supernova explosion. सो मैसिव स्टार्स के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, जिसमें छोटी कैटेगरी 8 to 20 टाइम्स बिगर देन द मास ऑफ द सन में न्यूट्रॉन स्टार प्रोड्यूस होता है, एंड 25 टाइम्स से भी ज्यादा अगर सन के मास से आपका इस स्टार का मास है तो इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू अ ब्लैक होल. सो ये पूरा प्रोसेस होता है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, एंड इन डिफरेंट स्टेजेस पे जो ल्यूमिनोसिटी का लेवल है उस स्टार का वो भी डिफर करते रहता है क्योंकि टेम्परेचर डिफर करता है एंड द रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑल्सो डिफरिंग. सो न्यू एज स्टार्स में हम बोलते हैं प्रोटोस्टार्स आता है, मेन सीक्वेंस स्टार आता है एंड कुछ यंग मैसिव स्टार्स भी फॉर्म होते हैं जैसे कि ब्लू जायंट्स. तो इनकी जो ल्यूमिनोसिटी है ओवरऑल अगर बात करें न्यू स्टार्स के एजेस में ल्यूमिनोसिटी हाई होती है, बट ये भी डिफर करती है, कभी इंक्रीज होती है एंड कभी डिक्रीज होती रहती है विद टाइम. प्रोटोस्टार्स सबके ही बीच में तीन चीजें, एक चीज कॉमन है
कि टेम्परेचर हाई है कोर के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का रेट बढ़ रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, जिसकी वजह से ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो ये जो ल्यूमिनोसिटी है ये इंक्रीज होती रहती है मेन सीक्वेंस स्टार के फेस में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन यहाँ पे मिलती है। कोर में जो रेट ऑफ फ्यूजन है वो बढ़ रहा है, बट क्योंकि फ्यूजन का रेट बढ़ रहा है तो जो हाइड्रोजन है जो कन्वर्ट होते जा रही है हीलियम के अंदर, उसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है इन दी कोर, जिसकी वजह से एजिंग स्टार जो सुपर मैसिव या फिर रेड जाइंट फेज होता है स्टार का, उसमें हम देखते हैं कि कोर कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। वैसे ही यंग मैसिव स्टार्स के अंदर भी, क्योंकि मैसिव स्टार है उसका मास ज्यादा है एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है कोर के अंदर, तो टेम्परेचर भी ज्यादा है कोर में, जिसकी वजह से जो फ्यूजन रेट है वो ज्यादा है। फ्यूजन रेट ज्यादा है तो ल्यूमिनोसिटी इज ऑल्सो हाई। बट क्योंकि फ्यूजन रेट इन स्टार्स में हाई है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो कम होते जाता है। तो स्पेसिफिकली ब्लू जाइंट्स के अंदर हम देखते हैं लाइफ स्पैन जो होता है शॉर्ट होता है इन स्टार्स का। देन एजिंग स्टार्स के फेज में इट इज रेड जाइंट फेज, जहाँ पे जो ल्यूमिनोसिटी होती है इट इज एट पीक, because the star is using its hydrogen in the core, temperature is also high, also the outer layer is expanding outwards and the core is starting to contract inwards, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो डिक्रीज हो रहा है स्टेज में। अब हमने देखा था लास्ट सेशन में भी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा ल्यूमिनस होता है, बट यहाँ पे वो केस अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, बट तब भी जो ल्यूमिनोसिटी होती है इन स्टार्स की इट इज एट इट्स पीक। वो इसी वजह से है क्योंकि टेम्परेरी फेज में जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है इन दी हीलियम, दैट मीन्स जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो चुका है, जिसकी वजह से ल्यूमिनोसिटी भी पीक पे होती है रेड जाइंट फेज के अंदर। देन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टार वो कन्वर्ट होता है या तो व्हाइट डवार्फ में, या तो न्यूट्रॉन स्टार में, या तो ब्लैक होल के अंदर। इनमें से सिर्फ सुपरनोवा जब अकर करता है, जब कोई मैसिव स्टार वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा के नेम में है कि जो मैसिव स्टार है वो एक्सप्लोड हो रहा है। अगर कोई भी चीज एक्सप्लोड होती है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रेडिएट करती है, जिसकी वजह से उसकी ल्यूमिनोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब जो न्यूट्रॉन स्टार होता है एंड जो ब्लैक होल होता है वो उनकी जो ल्यूमिनोसिटी होती है न्यूट्रॉन स्टार के केस में बहुत ज्यादा कम होती है, बट ब्लैक होल के केस में हम देखते हैं कि जो ल्यूमिनोसिटी है वो होती ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल से कोई भी लाइट एमिट नहीं कर सकती क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है। बट ब्लैक होल्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसके अराउंड जो एक्सिलरेशन डिस्क होती है वहां पे एनर्जी रेडिएट होती है, उसी की मदद से साइंटिस्ट भी ब्लैक होल को डिस्कवर कर सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की ल्यूमिनोसिटी कम होती है, बट न्यूट्रॉन स्टार अगर स्पिन कर रहा है, जिसको हम पल्सर स्टार बोलते हैं या पल्सर बोलते हैं, तो स्पिनिंग के केस में क्योंकि वो इतना जल्दी स्पिन कर रहा है वो एनर्जी रेडिएट करता है एंड उसकी वजह से वो ल्यूमिनस होता है। तो न्यूट्रॉन स्टार में पल्सर का जो केस होता है उस केस में वो ल्यूमिनस होता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो गए स्टार्स के एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ल्यूमिनोसिटी ऑफ दी स्टार्स। न्यू एज स्टार्स में प्राइमरीली हाई ल्यूमिनोसिटी होती है, एजिंग स्टार में ल्यूमिनोसिटी पीक पे होती है क्योंकि रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एट द एंड एज ऑफ द स्टार्स यहाँ पे व्हाइट ड्वार्फ जिसमें ल्यूमिनोसिटी कम होती है, बट सुपरनोवा जब होता है तो हम देखते हैं कि एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए ल्यूमिनोसिटी एक्सट्रीम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता क्या है, इसमें कंफ्यूजन रहती है एंड इसी से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, दैट इज ब्लेजर एंड क्वासर। ये क्या होते हैं? अब एक गैलेक्सी का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, बोल सकते हैं कि मिल्की वे का एग्जाम्पल है। मिल्की वे के बीच में हमें पता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है जिसको सैजिटेरियस ए बोलते हैं हम। जो ग्रीन में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि गैलेक्सी के सेंटर पे प्रेजेंट है। एंड हम बोलते हैं कि गैलेक्सीज का जो सेंटर होता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है एंड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो गैस पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, स्टार्स हैं, उनको वो अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से इन गैलेक्सीज में हम देखते हैं कि जितना जितना हम सेंटर के पास जाते हैं गैलेक्सी में उतना ज्यादा वो ब्राइट होती है, मतलब उतने ज्यादा स्टार्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एंड जितना जितना एंड की तरफ जाते हैं गैलेक्सी पे उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस कम होती जाती है। दैट इज बिकॉज जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो बीच में प्रेजेंट है। अब
क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है एंड स्टार्स पुल हो रहे हैं, इस वजह से नेचुरली जो बीच वाला एरिया है वो ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। इसी ब्राइट और एनर्जेटिक एरिया को हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। जो सेंटर है गैलेक्सी का, दैट इज वेरी ब्राइट एंड वेरी एनर्जेटिक। वही इसके रीजन है, क्योंकि सुपरमैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है, वो अट्रैक्ट करता है गैस, डस्ट एंड स्टार्स को, जिसकी वजह से जो ब्लैक होल की तरफ मटेरियल है वो पुल होता है, बट डायरेक्टली पुल नहीं होता है। यहाँ पे आता है कि फ्रिक्शन है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जिसकी वजह से जो मटेरियल पुल हुआ है वो पहले स्वर्ल करता है अराउंड द ब्लैक होल एंड देन ब्लैक होल में एंटर करता है। इसी स्वर्लिंग एक्शन से एक्सेलरेशन डिस्क बनती है अराउंड दी ब्लैक होल, जिसकी वजह से हम ब्लैक होल को डिटेक्ट कर पाते हैं। एंड क्योंकि एक्टिवली ब्लैक होल पुल कर रहा है एंड एक्टिवली स्वर्लिंग एक्शन हो रहा है, एक्टिवली जो लाइट है वो रेडिएट हो रही है, इसी वजह से इस गैलेक्टिक न्यूक्लियस वाले एरिया को हम एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि एक्टिवली कॉन्टिन्यूसली ये चीज होती जा रही है। नाउ इसी रीजन में जहां पे सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है, इसी सुपर मैसिव ब्लैक होल को हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि हम उसको ब्लेजर बोलते हैं या क्वार्सर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो ये एक पर्टिकुलर गैलेक्सी है और हमारी जो अर्थ है वो इधर ऊपर लोकेटेड है, एंड जो साइंटिस्ट हैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड बेसिकली अर्थ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, एंड वहां से हमको टॉप व्यू दिख रहा है इस गैलेक्सी का, जिसकी वजह से ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल बीच में प्रेजेंट था एंड वो लाइट भी रेडिएट कर रहा है, जैसे कि ये जेट हम देख सकते हैं एनर्जी का, वो हमें टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है तो हम उसी सेंटर को, उसी रेडिएशन ऑफ एनर्जी को ब्लेजर बोलते हैं। बट अगर वही व्यू हमें साइड से दिख रहा है, अगर साइंटिस्ट अर्थ पे जो प्रेजेंट है वो इसको साइड व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस केस में इस सुपर मैसिव ब्लैक होल से इजेक्ट होते हुए जेट्स हमें विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्वार्सर बोलते हैं। तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये दो डिफरेंट नेम दिए हैं कि सेम एनर्जी जो ब्लैक सुपर मैसिव ब्लैक होल से रेडिएट हो रही है वो हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रही है। सो ये कॉन्सेप्ट है पूरा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का। देन रिगार्डिंग व्हाट इज ब्लेजर, व्हाट इज क्वार्सर एंड क्यों इस पूरे रीजन को हम एक्टिव बोलते हैं। देन ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ब्लैक होल, पल्सर एंड न्यूट्रॉन स्टार। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार दोनों ही एंड रिजल्ट हैं ऑफ अ मैसिव स्टार अंडरगोइंग अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। बट इनमें भी कैटेगराइजेशन होता है। अगर वो मैसिव स्टार इज 8 to 20 टाइम्स बिगर देन द मास ऑफ द सन एंड उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिला है, देन उसको हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। बट उससे भी ज्यादा अगर मास है, दैट इज मोर देन 25 टाइम्स the mass of the sun, and if that star is undergoing a supernova explosion then we call it a black hole। तो ब्लैक होल और ज्यादा बड़े मैसिव स्टार से बनता है एंड न्यूट्रॉन स्टार जो है वो कंपैरेटिवली छोटे मैसिव स्टार से बना है। एंड यही न्यूट्रॉन स्टार अगर स्पिन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा तेज स्पीड में स्पिन कर रहा है कि वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है, उसी को ही हम पल्सर बोलते हैं। तीनों तीनों में ही हम देखते हैं कि फॉर्म होने के बाद साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है बट एक्सट्रीमली डेंस होता है, जहां पे ब्लैक होल जो है वो सबसे ज्यादा डेंस होता है एंड पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी हमें देखने को मिलता है एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। डिटेक्ट करना ब्लैक होल को मुश्किल होता है, बट एक्सेलरेशन डिस्क जो उसके अराउंड फॉर्म होती है उसके मदद से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन रेडियो वेव्स या फिर एक्स रेज के फॉर्म में जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसकी वजह से हम पल्सर स्टार को एंड न्यूट्रॉन स्टार को डिटेक्ट कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है इन द केस ऑफ ब्लैक होल। अब कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जो कि हमने करंट अफेयर्स में देखे हैं इन द रीसेंट टाइम्स, जिसमें सबसे पहले आता है एक क्लाउड जिसका नेम न्यूज में आया था, रिगार्डिंग इट इज कॉल्ड लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड X3। इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होल का प्रेजेंस देखा गया था और एक मैसिव स्टार का प्रेजेंस देखा गया था। बट इसी क्लाउड से रिलेटेड है पोलराइज्ड एमिशन का कॉन्सेप्ट। पोलराइज्ड एमिशन क्या होती है? पोलराइज्ड एमिशन, किसी भी फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो रही है, लाइट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, किसी और टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो लाइट
रेडिएट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट हो रही है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है एंड एक पैटर्न फॉर्म कर रही है। रैंडम डायरेक्शन में ये एमिशन नहीं हो रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, सन से जो लाइट आ रही है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। कोई कैंडल हम लिट अप करते हैं या फिर लाइट बल्ब ऑन करते हैं तो हर डायरेक्शन में लाइट जाती है, उसको हम अनपोलराइज्ड एमिशन बोलते हैं। बट अगर वही लाइट जो सन से आ रही थी उसको हमने रिफ्लेक्ट करवाया यूजिंग अ ग्लास, तो वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है एज अ सिंगल वेव ऑफ लाइट, फिर वो पोलराइज हो जाती है, मतलब जो जितनी भी लाइट की वेव्स थी वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही पैटर्न में अलाइन हो गई। उसी कॉन्सेप्ट को, जब वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा ब्लैक होल या किसी स्टार के साथ या मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ हो रहा होता है तो हम उसको पोलराइज्ड एमिशन बोलते हैं। इनको क्यों स्टडी किया जाता है, ये जरूरी हो जाती है क्योंकि इनका इनका सोर्स जो है वो बताता है कि ये किसी ब्लैक होल के सरफेस के पास से आ रही है, या फिर किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट जैसे पल्सर से आ रही है, या किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट होके यहाँ पे आई है। सो इनके मदद से जो इन्वायरमेंट है पूरे यूनिवर्स का, वो साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है स्टडी करने के लिए रिगार्डिंग दी विद द यूज ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज लाइट का रियल लाइफ में भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो सन ग्लासेस हम पहनते हैं, जो सन ग्लासेस हम पहनते हैं, जो अनपोलराइज लाइट आ रही होती है सन से उसको वो पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। लाइट आती है, जो सन ग्लास हम पहनते हैं वो ब्लॉक करता है उस लाइट को, एंड देन उसका जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कर देता है उस लाइट को, जिसकी वजह से वो एक पोलराइज्ड इमिशन में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे डायरेक्शन में हो जाती है, एंड हमारी आईज प्रोटेक्टेड रहती है। Now next is regarding Hawking radiation. Hawking radiation एक theoretical prediction है by physicist Stephen Hawking in the 1974s. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम बोलते हैं कि एक ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि कोई भी लाइट एस्केप नहीं कर सकती। बट हॉकिंग रेडिएशन में ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी, छोटे अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है ओवर द टाइम एमिट होती रहती है एक ब्लैक होल से भी। कौन से एरिया से, उस एरिया से दैट इज कॉल्ड इवेंट होराइजन, मतलब जो बाउंड्री फॉर्म करता है ब्लैक होल की, उस एरिया से छोटे अमाउंट में रेडिएशन एमिट होती रहती है ओवर द टाइम पीरियड। एंड ये हमें दिखाता है कि क्योंकि एनर्जी रेडिएट होती जा रही है, धीरे धीरे जो ब्लैक होल है वो वीक होता जाएगा एंड धीरे धीरे उसको डिटेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा एंड देन इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएगा। सो एक थियोरेटिकल प्रिडिक्शन है, बट इसको हम हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं। हॉकिंग रेडिएशन इवेंट होराइजन के एरिया के पास से एनर्जी स्मॉल अमाउंट्स में रेडिएट हो रही है ओवर द टाइम पीरियड। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सपोसैट। एक्सपोसैट ISRO is an ISRO planned space observatory to study the polarization of cosmic X-rays। जो पोलराइज्ड एमिशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, एंड उसी लीनियर पोलराइजेशन को डिटेक्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है। सो एक्सरे हाई एनर्जी लाइट होती हैं जो कि किसी एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, किसी ब्लैक होल से आ सकती हैं, किसी न्यूट्रॉन स्टार से आ सकती हैं, उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प करेंगी। पोलराइजेशन मतलब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन या किसी स्पेसिफिक पैटर्न में जो लाइट है वो आ रही है, एंड यहाँ पे हम एक्स रेज की बात कर रहे हैं, जिससे उनके बिहेवियर के बारे में एंड ऑल्सो उनके सोर्स जो है, जिस ऑब्जेक्ट से वो आई है उसके बिहेवियर के बारे में भी हमें बताता है। सो कैसे वर्क करता है, जैसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट सोर्स है, ये लाइट बीम आ रहा है, यहाँ पे पोलराइजर है जो वर्टिकल है, लीनियर पोलराइजेशन, एंड देन वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट वेव्स यहाँ पे हमें मिल रही है। तो एक्सपोसैट जो है उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर जिसको बोलते हैं। ये डिवाइस मेजर करता है डायरेक्शन और इंटेंसिटी इन एक्स रेज का, कि कौन से सोर्स से ये आ रही है। अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि कैसे ये जो एक्स रेज हैं ये पोलराइज्ड है, एंड क्या मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या बिहेवियर है जिन जगह से ये आ रही है। वो ब्लैक होल भी हो सकता है, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पॉलिक्स इसको बोलते हैं, पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेज, उसको यूज किया जाता है इन एक्स रेज को यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पे हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी पोजीशन पे ब्लैक होल हो सकता है, न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है, या सुपरनोवा का रेमिनेंस वहां पे यूनिवर्स में लोकेटेड है। उसी
एरिया उसी ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जाता है, एंड ये हेल्प भी कर सकता है कि कैसे मटेरियल जो है वो फॉल हुआ है इनसाइड द ब्लैक होल, या फिर जो न्यूट्रॉन स्टार है और जो पल्सर है, कि कैसे ये जो एक्सरेज थी ये पोलराइज हुई, एंड क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या रोटेशन है उस न्यूट्रॉन स्टार का। देन वही सेम केस अप्लाई होता है रिगार्डिंग दी रेमिनेंस ऑफ अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, कि कैसा वहां पे हाई एनर्जी एनवायरनमेंट था, लो एनर्जी एनवायरनमेंट था, उसके बारे में हमें ये बताएगा। सो सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगा ये 500 to 700 किलोमीटर्स, एंड 5 years का इसका प्लान्ड लाइफ टाइम है। इंडिया का फर्स्ट है एंड वर्ल्ड का सेकंड पोलरीमीटर मिशन है ये। इससे पहले नासा ने कंडक्ट किया था इन 2021। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट होल एंड बिग बाउंस। सो बिग बाउंस पहले देख लेते हैं। बिग बाउंस बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी से बिगिन नहीं हुआ था, बट एक ऐसे साइकिल ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से बिगिन हुआ था। तो ये बेसिकली रिजेक्ट करता है द आइडिया ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली एक्सपेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इसमें ये पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया है कि यूनिवर्स जो है वो नथिंग से स्टार्ट हुआ एंड एक्सपैंड होता गया हमेशा, जो कि हम देखते भी हैं। बट बिग बाउंस तो यहाँ पे बोला जाता है कि मल्टीपल लेवल पे बाउंसेस हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल लेवल पे जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ है एंड देन कोलैप्स हुआ है, फिर से बाउंस हुआ है एंड देन फिर से कोलैप्स हुआ है। एंड बेसिकली बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये बिग क्रंच के कॉन्सेप्ट में बता रहा है। मतलब पहले एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था जो कि कोलैप्स हो गया, एंड इंस्टेड ऑफ एंडिंग वही यूनिवर्स वापस से बाउंस बैक किया, जिसको हम अभी करंट रेट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो वो बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से नहीं, वो बिग बाउंस थ्योरी की वजह से हुआ है। तो एक तरीके से ऑल्टरनेटिव है ऑफ बिग बैंग। एंड सिंगुलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ था यूनिवर्स, उसको भी ये रिजेक्ट करता है, अवॉइड करता है उस आइडिया को, एंड बोलता है कि जो यूनिवर्स है वो रीबाउंड हुआ है, बट सिंगुलैरिटी से बर्थ नहीं हुआ है। देन रिगार्डिंग द क्वांटम थ्योरी एंड जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड एक्सप्लेन करती है छोटे पार्टिकल्स का बिहेवियर, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे पार्टिकल्स हम बोलते हैं कि वेव की तरह एक्ट करते हैं, या फिर उनका सुपरपोजिशन कैसे होता है, कैसे एक दूसरे से इंटैंगल्ड होते हैं, उस चीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है क्वांटम थ्योरी। उसी जगह पे अगर हम जनरल रिलेटिविटी बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं, तो वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे ग्रेविटी वर्क कर रही है लार्ज स्केल पे, प्लैनेट्स के केस में, स्टार्स के केस में, गैलेक्सीज के केस में कैसे ग्रेविटी बिहेव कर रही है। वो हमें स्पेस एंड टाइम का जो डायमेंशन है वो शोकेस करता है, शोकेस करता है कि कैसे प्लैनेट या फिर स्टार्स जो हैं वो स्पेस और टाइम के उस फैब्रिक को बेंड कर देते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। वो हमें बताता है कि ग्रेविटी प्रेजेंट है। बट यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात हो रही है। यूनिफिकेशन की जरूरत क्यों है? यूनिफिकेशन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि क्वांटम थ्योरी बात करती है छोटे स्केल पे, एटम के स्केल पे, बट जो जनरल रिलेटिविटी है वो बड़े स्केल पे बात करती है, प्लैनेट या गैलेक्सी के स्केल पे। तो अगर दोनों को हम साथ में अप्लाई कर देंगे, दोनों थ्योरीज को, तो हम पता लगा पाएंगे कि छोटे लेवल पे एंड बड़े लेवल पे क्या चीज वर्क कर रही है, कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है पार्टिकल का, एंड देन ऑल्सो कैसे ग्रेविटी जो है वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स को इम्पैक्ट कर रही है। सो क्वांटम ग्रेविटी बोलते हैं इसको हम, दोनों को मर्ज करने के बाद। इससे हम ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट भी पता लगा सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, या फिर जो यूनिवर्स है जिस मोमेंट पे बिग बैंग हुआ था उस मोमेंट पे जो यूनिवर्स है वो कैसे बिहेव कर रहा था, या कैसे इन डिटेल क्या उस टाइम पे कंडीशंस फॉर्म हुई थी। सो बेसिकली ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है एंड क्वांटम फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। बट इश्यूज भी हैं दोनों की यूनिफिकेशन में, क्योंकि बोला जा रहा है कि इनकॉम्पैक्टेबल है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो क्वांटम ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं इन द यूनिवर्स। सो इस वजह से जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो मुश्किल हो सकता है इन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट कंक्लूजन्स।
सुपरपोजिशन, एक पार्टिकल डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है। एंड टाइम डायलेशन, जो जनरल रिलेटिविटी है उससे कॉन्सेप्ट भी देखते हैं हम, क्लॉक्स जो कि जीपीएस सैटेलाइट के मॉडल पे बेस्ड है। देन ब्लैक होल के बारे में पहले ही हम देख चुके हैं। अ मैसिव स्टार दैट इज मोर देन 25 टाइम्स बिगर देन द मास ऑफ सन, एंड व्हेन इट इज गोइंग थ्रू सुपरनोवा एक्सप्लोजन देन इट फॉर्म्स अ ब्लैक होल। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सुपर मैसिव होता है जो कि गैलेक्सीज के सेंटर में लोकेटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल सैजिटेरियस ए विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे। ऑल्सो मिनिएचर साइज में भी होता है, स्टेलर साइज में भी होता है। मिनिएचर स्मॉलेस्ट साइज होता है, सिर्फ एक एटम जितने साइज का। देन स्टेलर होता है, इट इज 20 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द सन। एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, इट इज लार्ज। देन नेक्स्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट होल। ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी तक इसके कंक्रीट एविडेंस हमें मिले नहीं है, बट यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि क्या एग्जिट पॉइंट है ब्लैक होल से, उसी मॉडल को हम व्हाइट होल बोल रहे हैं। हम बोलते हैं कि एक कोई भी मैटर जब ब्लैक होल के अंदर एंटर कर रहा है तो वो एस्केप नहीं कर सकता ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस। बट यहाँ पे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आया गया है कि क्या एक एग्जिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है ऑफ अ ब्लैक होल। सो उसी के मॉडल पे बात हो रही है कि कैसे वो मैटर एंड एनर्जी को एमिट करता है। एंड कोई एविडेंस नहीं मिला है इसका, बट एक बस कॉन्सेप्ट के लिए हम देख सकते हैं व्हाइट होल एंड ब्लैक होल। देन नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था मूवी के अंदर इंटरस्टेलर 2014 में। ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं नियर द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, उनको प्लैनेट्स बोला गया है यहाँ पे। एंड अर्थ को रिजेंबल नहीं करते हैं ये। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अवॉइड करने के लिए जो प्लैनेट्स हैं दे वुड नीड टू ऑर्बिट द ब्लैक होल एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप, इंडियन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड इमेजिंग स्पेस टेलीस्कोप, जो कि हेल्प करेगा गामा रेडिएशंस को, गामा रे बर्स्ट जो होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार एंड दूसरे जो कॉस्मिक प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं उनको बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए। लास्ट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिगार्डिंग गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट क्या होते हैं? एनर्जी है जो कि रेडिएट हो रही है एक्सप्लोजन से। कोई डिस्टेंट गैलेक्सी है या कोई डिफरेंट कोलिजन हो रहा है जिसकी वजह से गामा रेज के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो रही है। एंड सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट ये फॉर्म करती हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक तो शॉर्ट गामा रे बर्स्ट एंड लॉन्ग गामा रे बर्स्ट। अगर जो बर्स्ट है ऑफ द रेस वो लास्ट कर रहा है लेस देन 2 सेकेंड्स, तो उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये फॉर्म हुआ है फ्रॉम द मर्ज और फ्रॉम द कोलिजन ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार और फ्रॉम अ न्यूट्रॉन स्टार और फ्रॉम अ ब्लैक होल। सो अगर छोटा गामा रे बर्स्ट है तो न्यूट्रॉन स्टार से आया है या फिर ब्लैक होल से आया है। बट अगर लॉन्ग गामा रे बर्स्ट है दैट इज मोर देन 2 सेकेंड्स या फिर सेवरल मिनट्स तक लास्ट कर रहा है, तो इट इज फ्रॉम अ कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार जो कि 10 टाइम्स लार्जर है फ्रॉम द मास ऑफ द सन। उसका कोलैप्स हुआ है इनटू द ब्लैक होल, या फिर हाइपरनोवा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहे हैं उनकी वजह से रेडिएट हो रहा है। सो बेसिकली ज्यादा टाइम के लिए तो शॉर्ट, लंबे टाइम के लिए अगर रे बर्स्ट आ रही है तो इट इज कॉल्ड लॉन्ग जीआरबीस। डिटेक्शन के लिए 2 से 3 सैटेलाइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो एस्ट्रोसैट है, इसके अलावा नासा का फर्मी या फिर स्विफ्ट सैटेलाइट सिस्टम है जो कि ऑब्जर्व करता है गामा रे बर्स्ट्स को। एंड इंटीग्रल दैट इज इंटरनेशनल गामा रे एस्ट्रोफिजिक्स लैबोरेटरी है। ये सैटेलाइट है जो कि लोकेटेड है ताकि स्टडी किया जा सके जो आफ्टर ग्लो होते हैं, जो भी कोलिजन होने के बाद गामा रेस के आफ्टर ग्लो हैं या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर एमिशंस होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो नासा का फर्मी सैटेलाइट सिस्टम, एस्ट्रोसैट एंड इंटीग्रल रिगार्डिंग द गामा रे बर्स्ट्स।
So thank you so much everyone for joining in today. इसी सीरीज का एक डिटेल्ड ओवरव्यू देखने के लिए यू शुड बी revisit the GS1 Geography playlist. Thank you so much and keep learning with Ansarkari.